ریاست کے 9 اضلاع میں میڈیکل کالجز کے آغاز کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر انتظامات کرنے کی وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے ہدایت دی۔ وزیر صحت ہریش راؤ کے ساتھ انہوں نے ان اضلاع سے تعلق رکھنے والے وزراء اور ارکان اسمبلی کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منعقد کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں بعض ہدایتیں اور مشورے بھی دیے۔ وزیر موصوف نے میڈیکل کالجز کے الاٹمنٹ کے سلسلے میں کانگریس اور بی جے پی کی سازشوں سے عوام کو واقف کروانے پر بھی زور دیا۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ نمس کو 8 ماہ میں 100 گردوں کی پیوند کاری کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس طرح نمس نے انوکھا ریکارڈ بنایا ہے۔ وزیر صحت نے نمس کے ڈائریکٹر اور ڈاکٹرز کو اس سلسلے میں مبارکباد دی۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے اسے ایک یادگار لمحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نمس نے ہندوستان کی نگہداشت صحت کے شعبے میں نیا ریکارڈ بنایا ہے۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ و تلگو دیشم پارٹی کے قومی صدر این چندر بابو نائیڈو کو پولیس نے نندیال میں گرفتار کر لیا۔ اے پی سی آئی ڈی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور اے پی اسکل ڈیولپمنٹ کے فنڈز کے غلط استعمال کے الزامات پر مقدمات درج کیے۔ نندیال ٹاؤن میں ڈرامائی مناظر کچھ دیر کے لیے دیکھے گئے کیونکہ پولیس بڑے پیمانے پر چندر بابو کو گرفتار کرنے پہنچ گئی۔ اس موقع پر تلگو دیشم پارٹی کے کیڈر نے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ اے پی سی آئی ڈی پولیس نے پوچھ تاچھ کے لیے چندر بابو کو اے پی سی آئی ڈی کے ہیڈ کوارٹرز منتقل کیا۔ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت ان کے خلاف کیس درج کر لیا۔ مرکزی انجمن خادریہ اور سیرت النبی اکیڈمی نے اعلان کیا کہ جاریہ سال شہر میں میلاد جلوس نہیں نکالا جائے گا۔ علی قادری صدر سیرت اکیڈمی نے کہا کہ جلوس میں بعض افراد کے گھس کر شرانگیزی کرنے اور فتنہ پروری کے ذریعے شہر کی پرامن فضا کو مکدر کرنے کے امکان کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر بہادرپورہ کے مجلسی رکن اسمبلی محمد معظم خان نے عثمان باغ بنڈاگوڑا اور اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور ان ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کی تفصیلات بھی حاصل کی۔ اس موقع پر دودھ بولی کے کارپوریٹر محمد سلیم، جی ایچ ایم سی، واٹر بورڈ اور ٹرانسپورٹ کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ ملازمتوں کو باقاعدہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے رنگا ریڈی ضلع کی نارسنگی بلدیہ کے آؤٹ سورسنگ ملازمین نے دھرنا دیا۔ انہوں نے بلدیہ کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا اور اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ انہوں نے کمشنر بلدیہ کو اس سلسلے میں یادداشت بھی حوالے کی۔ ریاست میں یونیورسٹیوں کے کانٹریکٹ ملازمین کی خدمات کو باقاعدہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کرنے پر کانٹریکٹ لیکچررز نے برہمی کا اظہار کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ویجندر نے کہا کہ نظام کالج کو جانے کے دوران ان کی گرفتاری قابل مذمت ہے۔ اس گرفتاری کے خلاف عثمانیہ یونیورسٹی میں احتجاج کیا گیا۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر سی پی آر پر بیداری اجلاس منعقد کیا گیا۔ سی آئی ایس ایف کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ طیاروں میں سفر کے بعد دل کا دورہ پڑنے پر مسافرین کو سی پی آر کرنے کے طریقہ کار سے سی آئی ایس ایف کے عہدیداروں اور ملازمین کو واقف کروایا گیا۔ ایمرجنسی کے وقت اس طرح کی طبی سہولتیں فراہم کرنے کے سلسلے میں ان میں شعور بیدار کیا گیا۔
एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले राहुल की आमद पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर बोलारम के रहने वाले राहुल ने कहा कि एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करना फ़ख्र की बात है। राहुल ने नेपाल में मुनक़िदा इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनकी आमद पर उनके अरकान ख़ानदान और अहदेदारों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। मराकश में गुज़िश्ता शब खौफनाक ज़लज़ले में 206 अफराद हलाक हो गए और सैकड़ों इमारतें मुनहदम हो गईं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसियों के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि महलूकीन की ये इब्तदाई तादाद है, जबकि इस वाक़े में 153 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़लज़ले के मरकज़ के करीब तरीन मौजूद मराकश शहर में रहने वालों ने बताया कि शहर में बाज़ इमारतें गिर गई हैं जो कि यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। मुकामी टीवी पर तबाहशुदा कारों के मलबे दिखाए गए। मस्जिद की मीनार की तस्वीर भी पेश की गई हैं। अरब अल अरबिया न्यूज़ चैनल ने बताया कि नामालूम मुकामी ज़राए के मुताबिक खौफनाक ज़लज़ले में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद भी हलाक हुए हैं। ज़लज़ले के मरकज़ के करीब पहाड़ी गांव आसनी के रहने वालों ने बताया कि वहां ज़्यादातर मकानात को ज़लज़लों के सबब नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मलबे तलबे दब गए हैं और लोग गांव छोड़कर रवाना हो गए हैं। तेलंगाना के वजीर IT KTR ने कहा है कि CM KCR की क़यादत में रियासत में मजमूई तौर पर शहरी तरक्की और देही तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है और ये तरक्की सिर्फ एक ट्रेलर है, असल फिल्म अभी बाकी है। हैदराबाद हाईटेक्स में टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 का वजीर KTR के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रियासत में हुकूमत ने तमाम शोबों जैसे आपाशी, पीने का पानी, ज़राअत, सनतों और बिजली पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। माजी में हैदराबाद शहर में पीने का पानी का मसला हुआ करता था। वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत शहर के बाशिंदों को पीने का पानी फराहम करने के लिए कृष्णा और गोदावरी नदियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी लाया गया है। हैदराबाद में मुस्तक़बिल में पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। वज़ीर बल्दियात ने याद दहानी करवाई है कि हैदराबाद सरमायाकारी का मरकज़ बना हुआ है, ताहम बतौर आलमी शहर हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद तरक्की देने की ज़रूरत है। रियल स्टेट शोबे का जिक्र करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि रियल स्टेट शोबा सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं है, बल्कि दीगर अजला में भी ये वुसअत इख्तियार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में ज़मीनात की बढ़ती हुई कीमतें और तरक्की सिर्फ एक झलक है, असल फिल्म अभी बाकी है। हमारे दूर अंदेश को अजीम रहनुमा KCR हैदराबाद को आलमी शहर बनाएंगे। रियासती वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने खाद की फराहमी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सिलसिले में एक आला सतही जायज़ा इजलास तलब किया है। तेलंगाना के डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी की सदारत में मुनक़िद आला सतही जायज़ा इजलास में महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, स्पेशल कमिश्नर हनुमंत, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर हनुमंत राव व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत ने बताया कि रियासत में यूरिया की कोई कमी नहीं है और अगर मसनवी किल्लत पैदा की जाती है तो मौसर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रियासत में 908 प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और 16,615 डीलर्स के जरिए यूरिया सप्लाई किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की जानिब से रियासत में यूरिया की किल्लत होने का इल्ज़ाम लगाने पर निरंजन रेड्डी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और ये वाज़ेह किया है कि रियासत में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है।
रियासती वजीर बराए सियाहत व सकाफत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने HICC में 2 रोज़ा ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद शहर के HICC यानी हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 रोज़ा ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर मुनक्किद हो रहा है। वजीर सियाहत व सकाफत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना टूरिज्म महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलाजा रमयार, तेलंगाना टूरिज्म कॉरपोरेशन के चेयरमैन जी श्रीनिवास यादव, MD मनोहर वोडीकर के हमरा ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का आगाज किया। 9 और 10 सितंबर को मुनक्किद होने वाले इस मेले में मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी के अलावा जज़ायर की सियाहत को फरोग देने के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं। अलावा जी रॉयल ऑर्किड होटल्स, ट्रैवल्स फॉरेन हॉलीडेज, रिया ट्रैवल्स, रेडिसन होटल्स व दीगर सियाहती तंजीमों ने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं। जनसेना के सदर पवन कल्याण ने साबिक चीफ मिनिस्टर व TDP कौमी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि बुनियादी शवाहिद दिखाए बगैर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पर आंध्र प्रदेश CID पुलिस ने AP स्किल्स डेवलपमेंट के फंड का गलत इस्तेमाल करने के इल्जामात पर मुकदमात दर्ज किए और नंदियाल में हफ्ते की सुबह की अवालीन सातों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। टॉलीवुड अदाकार व जनसेना सदर पवन कल्याण ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत चंद्रबाबू के साथ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। जनसेना रहनुमा ने सवाल किया है कि क्या YSRCP कायदीन की बेकायदगियों और मुजालिम पर सवाल उठाना गलत है। हुकूमत आंध्र प्रदेश पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने रियासत में अमन अमान में खलल डालने का भी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। आंध्र प्रदेश CID के सरबराह N संजय सिंह ने साबिक CM चंद्रबाबू नायडू के स्किल्स डेवलपमेंट स्कैम में शेल कंपनियों के जरिए की गई बेकायदगियों में मुलविस होने का इंकशाफ किया है। TDP सरबराह N चंद्रबाबू नायडू को स्किल्स डेवलपमेंट स्कैम में कलीदी मुलजिम करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। CID चीफ N संजय सिंह ने मंगलगिरी में मीडिया से बात करते हुए स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर्स के क़याम में धांधलियां होने का इंकशाफ करते हुए कहा कि कुल 500 करोड़ रुपए की बेसाबतगियां पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 371 करोड़ रुपए डिज़ाइन टेक कंपनी को दिए हैं, हालांकि वो कंपनी माहिरे के वक्त मौजूद नहीं थी। CID चीफ ने बताया कि इस केस के सिलसिले में CID की टीमें दुबई और अमेरिका रवाना हो रही हैं। इस मामले में चंद्रबाबू के सेक्रेटरी श्रीनिवास और उनके फर्जंद लोकेश के किरदार का भी जल्द ही पता चल जाएगा। रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू की अहलिया N भुवनेश्वरी ने उनके शौहर की गिरफ्तारी पर कहा है कि वो रियासत के लोगों की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद उनकी अहलिया N भुवनेश्वरी ने विजयवाड़ा कनक दुर्गम्मा मंदिर में पूजा का एहतमाम किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू अपने खानदान के लिए नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के लोगों की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और मैंने दुर्गा देवी मंदिर में अपने शौहर की हिफाजत और कामयाबी के लिए दुआ की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चंद्रबाबू नायडू अपनी लड़ाई जीत जाएंगे।
تلنگانہ کے ڈی جی پی انجنی کمار نے آل انڈیا بورڈ کے فنگر پرنٹ ایکسپرٹس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے فنگر پرنٹ بیورو کے ASIs کو مبارکباد پیش کی ہے۔ نئی دہلی میں NRCB اور MHA کے زیر اہتمام فنگر پرنٹ ماہرین کو ایکریڈیٹیشن کے لیے ایک امتحان منعقد کیا گیا تھا۔ ریاست تلنگانہ کے 24 FPB ASIs نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ ڈی جی پی انجنی کمار نے تلنگانہ کی 4 کروڑ عوام کی جانب سے کامیابی حاصل کرنے والے FPB ASI کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ 24 افسران نے پوری تلنگانہ ریاست کو فخر سے بلند کیا ہے۔ ڈی جی پی نے ADGP مہیش M بھاگوت کی کوششوں کی بھی ستائش کی ہے۔ خیرتباد اسمبلی حلقے کے مقطع میں واقع قبرستان کے مسئلے کے حل کے لیے تشکیل دی گئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے سوماجی گوڑا مسجد امام کی جانب سے خیرتباد MLA کے خلاف دیے گئے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ خیرتباد اسمبلی حلقے کے سوماجی گوڑا ڈویژن میں قبرستان کی اراضی کا مسئلہ گزشتہ 17 سالوں سے زیر التوا ہے، تاہم مقامی مسلمانوں کی درخواست پر MLA دانم ناگیندر کی جانب سے اس سلسلے میں اہم پیش رفت کی گئی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ KCR سے بھی نمائندگی کی ہے۔ گزشتہ روز سوماجی گوڑا مسجد کے امام نے BRS MLA دانم ناگیندر کو قبرستان کے مسئلے کو حل نہ کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس دیرینہ مسئلے کو حل نہ کرنے پر MLA کو آئندہ انتخابات میں سبق سکھایا جائے گا۔ جاوید ہاشمی وینکٹیشور راؤ ڈویژن BRS مائنورٹی صدر و جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے امام مسجد کے گزشتہ روز دیے گئے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور ان کی جانب سے لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی گزشتہ 2 سالوں سے قبرستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور MLA دانم ناگیندر کی مساعی سے ہی 90% کام مکمل ہو پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب مسلمانوں کے لیے قبرستان الاٹ ہونے جا رہا ہے تو چند مسلمان بھائیوں کی جانب سے اس مسئلے کو الیکشن کا مسئلہ بنا کر اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ BRS رہنما نے مسلمان بھائیوں سے ایسے بیانات پر توجہ نہ دینے کی درخواست کی ہے۔ امام مسجد کی جانب سے سوماجی گوڑا قبرستان کا مسئلہ اٹھانے کے بعد صدر مجلس بیسٹ اسد الدین اویسی نے مقامی MLA کے ہمراہ جلد ہی وہاں کا دورہ کرتے ہوئے اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وہیں وقف بورڈ صدر نشین محمد مسیح اللہ خان نے بھی مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جلد ہی اس علاقے کا دورہ کرتے ہوئے قبرستان کے مسئلے کو حل کرنے کا تعہد دیا ہے۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن شاخ ضلع کمران بھیم آصف آباد نے تمام افراد بشمول مرد و خواتین سے اپنا ووٹر شناختی کارڈ بنوانے اور ووٹر شناختی کارڈ میں کوئی بھی غلطی ہونے پر اس کی تصحیح کروانے کی پرزور اپیل کی ہے۔ TUWJF ضلع آصف آباد کے ضلع صدر مرزا سلیم بیگ اور جنرل سیکرٹری ماجد اقبال نے ایک صحافتی بیان میں کہا ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور ہم یہاں کے باشندے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں عوام حکومتوں کا انتخاب کرتی ہے، وہ جو فیصلہ کرتی ہے حکومت اسی کو تسلیم کرتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ مقام اور اہمیت اس وقت ہی کارگر ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس موجود حق رائے دہی کا ہم صحیح استعمال کریں۔ دونوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے اس حق کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا، غفلت، بے توجہی اور لاپرواہی برتی تو پھر شہریوں کی حیثیت ایک بے جان مجسمے کی مانند ہو جائے گی جس کا وجود اور کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن شاخ ضلع کمران بھیم آصف آباد کی جانب سے مرزا سلیم بیگ اور ماجد اقبال نے سبھی سے اپیل کی ہے کہ وہ ووٹر ID کارڈ بنوا لیں اور ایسے تمام افراد جن کی عمر 18 سال سے تجاوز کر گئی ہے وہ بھی اپنے ووٹر ID کارڈ بنوا لیں اور اگر ان میں کچھ غلطیاں ہیں تو اس کو بھی درست کروا لیں۔ مساجد کے صدور و ائمہ حضرات فلاحی اور رفاہی کام کرنے والی سوسائٹیز سے بھی رہنمائی کرنے اور مدد کرنے کی پرزور اپیل کی گئی ہے۔
जमीयत उलमा सिरपुर कागज नगर की जानिब से शहरियों को वोटर आईडी कार्ड बनवाने का मशवरा दिया गया है। सिरपुर कागज नगर में जमीयत उलमा के जिम्मेदारान की कामयाब मसाई से वोटर आईडी कार्ड की तैयारी और दुरुस्तगी फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। जमीयत उलमा के जिम्मेदारान ने वोटर आईडी कार्ड की दुरुस्तगी और फहरिस्त में नामों की शमूलियत के लिए शहरियों की रहनुमाई का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जिम्मेदारान ने ऐसे अफराद जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है उन्हें आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ पोलिंग बूथ अफसरान से रुजू करने का मशवरा दिया है। कागज नगर जमात इस्लामिया हिंद की जानिब से कागज नगर के मशहूर व मारूफ शख्सियत मकबूल हुसैन रिटायर्ड म्यूनसिपल कमिश्नर की याद में एक ताज़ियती जलसा मुनक्किद किया गया। जमात इस्लामिया हिंद ने मस्जिद आमिरा वाक़ इंदिरा मार्केट में बाद नमाज ज़ोहर एक ताज़ियती जलसा मकबूल हुसैन मरहूम की याद में मुनक्किद किया। मकबूल हुसैन कौम व मिलत, सियासी, समाजी और अदबी खिदमत के लिए जाने जाते हैं। कुछ दिन कबल ही वो इंतकाल कर गए हैं। कागज नगर के आइमा इकराम की कसी तादाद ने ताज़ियती जलसे में शिरकत की। ज़िले नाजिम आसिफाबाद जमात इस्लामिया हिंद मोहम्मद रफ़ीउज़्ज़मान ने उनकी वफ़ात को एक अजीम सानहा करार देते हुए अफसोस का इजहार किया और कागज नगर के मशहूर व मारूफ शायर साबिर कागज नगरी ने अपने खिताब में कहा कि मरहूम मकबूल हुसैन की शख्सियत इल्मी व फ़िक्री अदबी एतबार से बुलंद व बाला थी। उन्होंने इस मौके पर अपने अशार के जरिए मकबूल हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया। उर्दू मीडिया की जानिब से मुंसिफ टीवी रिपोर्टर मुक़फ़्फ़म अहमद ने उनके इंतकाल पर रंज व गम का इजहार किया और एक ताज़ियती पैगाम में मरहूम को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। ताज़ियती इजलास में कागज नगर के गैर मुस्लिम रिटायर्ड टीचर्स ने भी शिरकत करते हुए मरहूम को खिराज पेश किया है। हाफिज कुरान का मुकाम व मर्तबा दुनिया व आखिरत में काफ़ी आला व अरफा है और हाफिज कुरान बरोज़ महशर 10 लोगों की शफाअत करेंगे। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नलगोंडा में मुनक़्क़िद दूसरा कुल हिंद मुकाबला हिफ्ज़ क़िराअत कुरान करीम व अज़ान को मुखातिब करते हुए किया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि दुनिया भर में मौजूद तमाम ओहदों व मकामात पर मुतय्यन लोग हाफिज कुरान के मुकाम व मर्तबे को नहीं पहुँच सकते। हुफ़ाज़ का उठना बैठना चलना फिरना गोया हर काम इबादत है, क्योंकि वो लोग हर काम सुन्नत के ऐन मुखातिब करते हैं। उन्होंने मुल्क भर से आए हुफ़ाज़ खुरा व मौज़नीन को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें शरीयत पर पाबंदी से जमी रहने और अवाम की इस्लाह करने की तरगीब दी। होम मिनिस्टर ने कहा कि हुफ़ाज़ इकराम अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान हैं, दोनों आपकी मदद करेंगे और आपके मुस्तक़बिल को कामयाब बनाएंगे। रियासती वज़ीर ने कुरान मजीद की फजीलियत बयान करते हुए कहा कि कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सारे आलम के लिए हिदायत की किताब है। कुरान पाक ताक में रखने या मखसूस दिनों में सवाब की नीयत से पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि ये किताब दस्तूर हयात है। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद को सिर्फ पढ़ने पर ही सवाब नहीं बल्कि उसको देखने और छूने पर भी सवाब है। कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज करने वाले हुफ़ाज़ दुनिया और आखिरत के खुशनसीब लोग होते हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ने का हुक्म दिया है ताकि उसको सही तरह से अदा किया जा सके और कुरान मजीद के 3 हुकूक़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अव्वल रोज़ाना तिलावत करना, दुअम गौर व फिक्र करना और सुवम तर्जुमे से पढ़ना और उस पर अमल करना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हाफिज़ कुरान का मुकाम व मर्तबा काफ़ी बुलंद व बाला होता है। जब कोई हाफिज़ कुरान किसी इलाके से गुजरता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इलाके से नहुसत को उठा लेते हैं और वहाँ बरकतें नाजिल फरमाते हैं। उन्होंने उलमाए दीन का कौलो नख्ल फरमाते हुए कहा कि कुरान मजीद क़ब्र में अज़ाब को रोकता है और क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की शफ़ाअत करता है। इजलास के आखिर में मुंतखब हुफ़ाज़ खुरा व मौज़नीन को मोमेंटो पेश किए गए और क़ारी मोहम्मद अली खान की दुआ पर तकरीर का इख्तिताम हुआ। इस मौके पर रुकने असम्बली के भास्कर रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन
एस रेड्डी, लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लिकार्जुन रेड्डी, सीनियर कायदीन निरंजन वली, अजीजुद्दीन बशीर, अहमद कलीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आइए सदन पुलिस ने चबूतरा मिशन मुनक्किद करते हुए बिना जरूरत रात देर गए सड़कों पर घूमने और गली कोचों में बैठने वाले नौजवानों को ताकीद की है कि वो बिना जरूरत रात देर गए अपने घरों से निकलने से गुरेज करें और चबूतरों पर बैठकर वक्त जाया न करें। आइए सदन SHO ने रात देर गए आइए सदन पुलिस हुदूद के मुख्तलिफ महलजात में गश्त करते हुए वक्त गुजारी करने वाले अफराद बिलखुसूस नौजवानों की काउंसलिंग की और उन्हें ताकीद की कि वो अपने वक्त का जिया न करें और बिना जरूरत रात में सड़कों पर न घूमें फिरें। पुलिस की जानिब से जराइम पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन चबूतरा, गाड़ियों की तलाशी मुहिम, कार्डन एंड सर्च जैसे इकदाम किए जा रहे हैं। ऑपरेशन चबूतरा के नाम पर पुलिस सख्त कार्रवाई करती नजर आ रही है। मुख्तलिफ इलाकों में बजरिए मोटरसाइकिल गश्त करते हुए बिना वजह जाने ही या तो लाठियां बरसाई जा रही है या फिर ऐसे अफराद के साथ नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस के रवैये पर लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। उन्हें शिकायत है कि वो किसी काम से घर से निकल रहे हैं या फिर किसी और मुकाम से अपने घर लौट रहे हैं और पुलिस मुकम्मल वजह जाने ऑपरेशन चबूतरा के नाम पर उनके साथ इस तरह का सलूक कर रही है। बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शहर हैदराबाद में जराइम व हादसात की रोकथाम के लिए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस समेत ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने गुज़िश्ता रात देर गए मुख्तलिफ इलाकों में शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और ऐसे अफराद जो हालत नशा में थे उन पर जुर्माने आयद किए। गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद के कई मकामात पर हालत नशा में गाड़ियां चलाने के सबब सड़क हादसात पेश आ चुके हैं। पुराने शहर से ज्यादा नए शहर में पब्स और बार मौजूद हैं। शराब नौशी करते हुए गाड़ियां चलाने वाले अफराद उन इलाकों में भी पाए जाते हैं। ताहम ट्रैफिक पुलिस सिर्फ बहादुरपुरा और फलकनुमा पुलिस हुदूद में मुतहरिक नजर आ रही है। शहरियान हैदराबाद का कहना है कि सड़क हादसात या फिर जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस को पुराने शहर के साथ साथ नए शहर में भी हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ इस तरह की मुहिम चलाने की जरूरत है। हैदराबाद के पुराने शहर में मकान में बरकी शॉक लग जाने से एक जोड़े की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक 36 साल तनवीर और उनकी अहलिया शाकिरा बेगम 3 बच्चों के हमरा बंडलागुड़ा के गौस नगर में पिछले कुछ सालों से मुकीम थे। बताया गया है कि हफ्ते की सुबह शाकिरा बेगम ने जैसे ही घर में पानी का पंप ऑन किया उन्हें करंट लग गया। उन्हें देखते ही उनके शौहर तनवीर बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वो भी उन्हें बचाने की कोशिश में बर्फी शॉक की जद में आ गए और दोनों की मौत हो गई। इत्तला मिलने पर पहुंचे पड़ोसियों ने बिजली की सप्लाई बंद की और दोनों अफराद को बिजली के तारों से अलग किया। ताहम उस वक्त तक दोनों की मौत हो गई थी। अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलते ही बंडलागुड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ हो गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।